Good morning, students. So today we will start the next lesson for class 12th, that is principles of inheritance and variation. Before this, we have completed the reproduction in plants and animals. Now this is a very important chapter because in this lesson we are going to discuss the different concepts of genetics. So before we start the lesson, let us try to know about some basic concepts of that we are going to use in the process of genetics. तो इसमें अपने सबसे पहले हम देखेंगे what is heredity. Heredity. First of all, we will see what is heredity. आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा in class 11th and in class 12th that heredity is simply we say parents give birth to their children, and children's are offsprings are similar to their, they are not identical to their parents, but they are similar to their parents. Then how this like begets like, how human beings give birth to their human beings, how other species give birth to their own species only, क्योंकि उनमें कुछ उनके पेरेंट्स में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो कैरेक्टर्स जाते हैं फिर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में. दैट मींस दिस ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन आर रिगार्डिंग कैरेक्टर्स, रिजेम्बलेंसेस एज वेल एज वेरिएशंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स ऑफ वन जनरेशन टू those of the future generations. This is called heredity. It is the transfer of information about what? About characters, resemblances, variations from one generation to other, or you can also say from parents to offsprings. So heredity is simply the transfer of information about characters, about different resemblances, variations that are present in the parents from parents to offsprings, or from one generation to the another generation. Now there is a science for this, that is the genetics. What is genetics then? It is a science in which we study the inheritance and this variation. That means we study heredity. Science in which we study heredity. That means how the transmission of characters takes place from parents to offsprings, or from one generation to the another generation. This we study in the science of genetics. That is, just like there are different branches of science, one of the branch of science is the genetics, in which we study what is the mechanism responsible for transmission of characters from parents to offsprings, or from one generation to the another generation. So before we start the Mendelism, let us first try to discuss about the terms that we are going to use in the discussing the Mendelism. First thing that is phenotype is the first term that we are going to use in the genetics while discussing genetics. तो कहीं मैं use करूँगा phenotype. What is a phenotype? Phenotype is simple the external appearance of an organism. See, for example, the color of your hairs. You are having black hairs. This is your phenotype. The color of your skin. You can be fair. You can be brown, brownish color. But different colors of skin can be there. That means this is your physical appearance. The physical appearance of our external view of an organism is called this is the phenotype of an organism. External view or external manifestation of an organism, of a character. तो बाहर से वो कैसा दिखता है, वैसा जैसे कि प्लांट की हाइट,
ये एक प्लांट का कैरेक्टर है, ठीक है। प्लांट के फ्लावर्स का कलर, ये प्लांट के कैरेक्टर है एंड ये फिनोटाइप है, प्लांट का कलर वो रेड भी हो सकता है या व्हाइट भी हो सकता है और वो पिंक भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन रेड हो सकता है, रेड में जेनेटिक कंपोजिशन अलग होगा, व्हाइट में जेनेटिक कंपोजिशन अलग होगा, तो फिनोटाइप उनका अलग होगा, जीनोटाइप उनका अलग होगा। दूसरा होता है जीनोटाइप। जीनोटाइप जीनोटाइप का मतलब होता है व्हाट इज द क्रोमोसोमल genetic constitution or chromosomal complement of that character or genetic constitution of an organism. Genetic constitution, genetic constitution of organism or that character you are studying. For example, सबसे पहले मैं इसमें एक ग्राफ है, इसमें खत्म हो गई। तो इसमें देखेंगे हम कि कैरेक्टर का जेनेटिक मेकअप क्या है। जैसे कि आपने आज तक सुना होगा, when we cross a pure tall plant with pure dwarf plant, जब एक बड़े प्लांट को क्रॉस करते हैं हम छोटे प्लांट के साथ, वहां पर जो पहली जनरेशन आती है उसमें सारे टाल होते हैं। वो हम देखेंगे क्यों। लेकिन अगर आप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस F1 जनरेशन देखोगे और पेरेंट्स देखोगे, वो डिफरेंट होगा। दैट मीन्स फिनोटाइप उनका सेम है बट उनका जीनोटाइप डिफरेंट है। वही हम देखेंगे कि जीनोटाइप किस तरह से उनमें डिफरेंट होगा। ओके, लेट अस सी। फॉर एग्जांपल, यहां पर मैं एक पेरेंट ले लेता हूं, ये टाल पेरेंट है, टाल। अब मैं इसको क्रॉस करवाता हूं डेवार्फ पेरेंट के साथ। डेवार्फ का मतलब होता है शॉर्ट, या इसको आप शॉर्ट भी कह सकते हो। जब इनकी जो पहली जनरेशन आती है वो सारे टाल है, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे, ये वाला टाल जो है ये होमोजाइगस है। इसमें होमोजाइगस मीन्स इसमें दोनों डोमिनेंट एलील्स है। और ये वाला डेवार्फ जो ये भी होमोजाइगस है बट रिसेसिव। इसमें जो दोनों एलील्स है वो रिसेसिव होते हैं। अभी हम देखेंगे आगे कि रिसेसिव डोमिनेट क्या होता है। दैट मीन्स आप याद रखो, इसमें दोनों डोमिनेट है, इसमें दोनों रिसेसिव है, इसीलिए इसको कहते हैं होमोजाइगस। सिमिलर इसमें है, दोनों डोमिनेट है, इसको कहते हैं होमोजाइगस डेवार्फ, इसी क्योंकि इसमें दोनों रिसेसिव के एलील्स है। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे, इसमें से एक होगा और इसमें से एक होगा, ठीक है। लेकिन इसका फिनोटाइप क्या है, टाल। इसका फिनोटाइप भी टाल है। लेकिन अगर आप जीनोटाइप देखोगे, इसका कैपिटल टी है, इसका कैपिटल टी स्मॉल टी है। तो ये इसका जीनोटाइप है और ये इसका जीनोटाइप है। ये इसका फिनोटाइप, दैट मींस इन दोनों का फिनोटाइप सेम है बट इनका जीनोटाइप डिफरेंट। तो जीनोटाइप में हम देखते हैं कि इसका क्रोमोसोमल कंप्लीमेंट क्या है। ये सारी चीजें हम जीनोटाइप में देखते हैं। नेक्स्ट इज और एक टर्म जो है इसमें यूज करते हैं हम, जीन। What is gene? Gene is simply the unit of inheritance, जिसके थ्रू कैरेक्टर जाता है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में, ठीक है। इट इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिटेंस, और दे कंटेन द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए कैरेक्टर। कंटेनिंग, इसी में वो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन इसमें वो, इस जीन में वो इंफॉर्मेशन होती है रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन उसको जीन में होती है। दैट मीन इट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और हर एक कैरेक्टर की वन कैरेक्टर वन जीन, ये आप याद रख लेना। एक कैरेक्टर की एक जीन होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर कैरेक्टर लूंगा प्लांट हाइट, ये प्लांट का कैरेक्टर है, समझ आया। उसके बाद फ्लावर कलर, ये
फ्लावर कलर, ये भी प्लांट का कैरेक्टर है। सीड शेप, ये भी प्लांट का कैरेक्टर है। ठीक है, मुझे लगता है पहले हमें कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना था, उसके बाद हमें जीन को ये एक्सप्लेन करना था। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैरेक्टर क्या होता है। व्हाट इज अ कैरेक्टर? कैरेक्टर इज सिंपली द एनी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जैसे कि प्लांट की हाइट, ये इसका कैरेक्टर है। प्लांट के फ्लावर्स का कलर, ये इसका कैरेक्टर है। ह्यूमंस के हेयर्स का कलर, ये इसका कैरेक्टर है। कलर ऑफ आईज, इट्स कैरेक्टर ऑफ ह्यूमंस। कलर ऑफ स्किन, कैरेक्टर ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, हाइट ऑफ ह्यूमंस, इट्स अ कैरेक्टर ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, कैरेक्टर को हम कहते हैं एनी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है एक्सटर्नल कैरेक्टर, या फिजियोलॉजिकल मीन्स कोई फिजियोलॉजी से रिलेटेड कोई कैरेक्टर है। फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कोई भी, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल ली, प्लांट की हाइट, इट इज ए कैरेक्टर। फ्लावर का कलर, इट्स ए कैरेक्टर। सीड की शेप, इट्स ए कैरेक्टर। सीड का कलर, इट्स ए कैरेक्टर। फ्लावर की पोजीशन, इट इज ए कैरेक्टर। ठीक है, फ्लावर्स का कलर, इट इज ए कैरेक्टर। कलर ऑफ हेयर्स, इट्स ए कैरेक्टर। कलर ऑफ स्किन, इट इज ए कैरेक्टर। ठीक है, कोई भी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसको हम कहते हैं इट इज ए कैरेक्टर। लेकिन अगर मैं आपको कहूंगा कि प्लांट की हाइट, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज टॉल और वेदर इट इज डवार्फ। 200 प्लांट का कैरेक्टर, प्लांट की हाइट इसका कैरेक्टर है, लेकिन आप कभी ये नहीं कहते हो प्लांट की हाइट, या तो टॉल कहोगे या तो डवार्फ कहोगे। दैट मीन्स हर कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग फीचर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रेट्स। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे, अगर आप प्लांट की हाइट एग्जांपल ले लेंगे, इसके दो कंट्रास्टिंग फीचर्स होते हैं, जैसे कि मेंडल ने कहा था, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हम मेंडल की बात कर रहे हैं अभी। ये टाल भी हो सकता है, और ये इट कैन बी डवार्फ आल्सो। That means the height of the plant can be tall, it can be short. So these two contrasting features of an organism, they are called traits. ठीक है, so we can define trait here. What is a trait? Trait is the distinguishing feature of a character, जिससे आप कैरेक्टर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ए कैरेक्टर, सही, जिससे आप कैरेक्टर को डिस्टिंग्विश कर सकते हो। सो जैसे कि प्लांट की हाइट, ये कैरेक्टर है, इसकी दो ट्रेट्स हैं, टॉल एंड डवार्फ। इससे फ्लावर का कलर, ठीक है, ये कलर है, इट कैन बी वाइट, इट कैन बी रेड। ठीक है, सीड का शेप, ठीक है, इट कैन बी राउंड, इट कैन बी रिंकल्ड। ठीक है, तो डिफरेंट हर एक कैरेक्टर के दो कंट्रास्टिंग फीचर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं ट्रेट्स। अब मैंने कहा अभी ये कैरेक्टर जाता कैसे है ऑफस्प्रिंग्स में, विद द हेल्प ऑफ ए जीन, बिकॉज जीन इज ए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इसी के थ्रू ये जनरेशन टू जनरेशन, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स जाता है। लेकिन दैट मीन्स उस जीन में वो इन्फॉर्मेशन होगी जो इस कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करती है। For one character, there is one gene. One gene is controlling one character. But I have already told you that a character is having two contrasting features. They are called traits. अगर एक कैरेक्टर को एक जीन कंट्रोल करती है, तो ट्रेट्स को कौन कंट्रोल करेगा? इसीलिए एक जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं एलील्स या एलीलोमॉर्फ्स। ठीक है।